भाषा हिंदी। हिंदी तो दिल में बसती है, हिंदी तो दिल में बसती है, जुबां से निकलती है, हमें व आपको लीमा की धरती पर मिलाती है, हमें व आपको लीमा की धरती पर मिलाती है। यह है मेरी प्यारी सी मुस्कुराती सी भाषा हिंदी। परदेश में हिंदी ने हमें आपसे मिलाया, परदेश में हिंदी ने हमें आपसे मिलाया, कुछ हंसाया तो कुछ रुलाया, कुछ हंसाया तो कुछ रुलाया, और फिर हिंदी ने स्पेनिश से मिलाया, और हिंदी स्पेनिश ने मिलकर अपने अपने कार्य क्षेत्र को श्रेष्ठ बनाया। स्पेनिश से मिलकर हमने आपको जाना, स्पेनिश से मिलकर हमने आपको जाना, सोचा समझा और अपने हृदय में बसाया, सोचा समझा और अपने हृदय में बसाया। तो क्यों ना आज हम विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ पर मिलकर हिंदी बोलें, हिंदी को साक्षर करें व हिंदी से आपका धन्यवाद अदा करें। जय हिंदी दिवस, जय प्रवासी दिवस। थैंक यू, muchas gracias todos. Thank you, thanks a lot. When one hears the Jana Gana Mana, which Indian soul will not feel a deep sense of pride? When the words Vande Mataram are uttered, which Indian heart will not be filled with devotion for the motherland? As a proud messenger of warmth and fond memories from India, Prime Minister Shri Narendra Modi journeyed across the seas with but one aim, and that was to bolster the pride and prestige of both India and Indians across the world. आप सबने अपने व्यवहार के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा बहुत इज्जत कमाई। For the first time ever has the top leadership of the nation formed such a direct connection with the expatriate Indian diaspora. In nation after nation, large or small, developed or developing, the Prime Minister made a difference. He forged new bonds, he brought new life to existing ones so they become stronger and deep. No stone was left unturned to showcase India's strength and capabilities to the whole world. But more had to be done after this to closely connect the Indian diaspora with India. The first decision was to involve them more closely in the process of policy formulation. This led to the formation of the Pravasi Bharatiya Kendra, which was inaugurated by the Prime Minister on the 2nd of October 2016. For the first time, brainstorming sessions with active participation of NRIs are being conducted, touching upon a number of areas. The contribution of NRIs to social and economic developmental efforts, better services in trade and commerce, encouraging tourism, and the problem of overseas contract labor, especially in self-respect of Indians abroad, lies the matter of their security. And this avenue is being diligently pursued by the Minister of External Affairs, Sushma Swaraj. Whenever Indians settled abroad have faced trouble or threatening situations, or have been trapped in dangerous places, the Foreign Ministry has swung into mission mode to organize their rescue under the direct supervision of Madam Swaraj. In today's world, a single tweet solves the toughest of problems efficiently and quickly. So whether it was Sushil Kapoor, who was innocent but wrongly accused and imprisoned in an Iranian jail for 2 years, or Naushad Alam, who lost all his possessions in Saudi Arabia, whether it was deaf and mute Geeta stuck in Pakistan, Gurpreet Kaur, who faced problems while searching for her husband in Germany, Sonu caught in Bangladesh, or Judith caught in Afghanistan, whose coming home had become next to impossible, all these people have been brought back to India safely by the government of India. Over the past 2 years, 4 major evacuations have been pulled off from international trouble spots. Over 7,000 were rescued from Iraq, over 3,000 from Libya, 1,000 from Ukraine.
and over 4,000 Indians from Yemen. Along with Indians, around 2,000 foreign nationals were also evacuated to safety from Yemen. Over 150 Indian nationals were brought back safely home from South Sudan as well. भारत माता की, भारत माता की। The honor and self-respect of non-resident Indians. The security of non-resident Indians. The contribution by non-resident Indians to India. For the first time in history, the government of India will be connecting directly with 2.8 crore non-resident Indians. Come, today on Pravasi Bharatiya Divas, let us celebrate the occasion with a sense of deep pride and an exuberant joy. Jai Hind. एक इंजीनियर हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी देशी भाषा सीखने से हमें उस देश की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। मेरी हिंदी जानने की यात्रा हिंदी मूवीज़ देखने से शुरू हुई। इसमें मेरी एक मित्र ने मेरी सहायता की बॉलीवुड फिल्मों को मंगाया। सबसे पहली पिक्चर मेरी दिल्ली उसका नाम कभी खुशी कभी गम था। इसे मुझे भारतीय परंपराओं, संस्कृति और अभिनेताओं के बारे में और जानने का मौका मिला। फिल्म एक आईना है जिसमें हम भारत के विभिन्न प्रांतों की सुंदरता देख पाते हैं तथा पारंपरिक रीतियाँ, हास्य, जीवन के दुखद संवाद समाज पाता है। मुझे फिल्मी गानों में दर्शाए गए दृश्य बेहद पसंद है। मुझे सेंट्रल कल्चरल इंडिया में हिंदी कक्षाओं में बहुत रुचि है। धन्यवाद। नमस्ते। सभा में आए हुए सभी लोगों का इस उत्सव पर्व में इरिस सम्रान एस्कोबेडो अपने देश पेरू की तरफ से सभी का स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ हमारे साथ अपनी संस्कृति हमारे साथ बताने के लिए जो कि हमारे यहाँ काफ़ी पसंद किया जाता है। आभार प्रकट करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 13 वर्ष की आयु में पहली बार इस भाषा को सुना और इंडिया यानी भारत के बारे में जाना तो पता चला किया कितना अद्भुत देश है। अपनी जिज्ञासा और रिसर्च के कारण एशिया महाद्वीप के भारत नाम के अद्भुत देश के बारे में जानना शुरू किया। फिर मैं हिंदी सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया। मैं मेरे गुरु उमेश सिंह जी और मेरे हिंदी सीखने वाले साथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके कारण मैं हिंदी सीख पाई और आप सबसे हिंदी में बात कर पा रही हूँ। आदमी मैं जहाँ के सिनेमा की तरफ करना चाहूँगी जिनसे भारत की संस्कृति के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चली और साथ ही साथ हिंदी सीखने में मदद मिली। आशा करती हूँ कि इस देश और भाषा के बारे में और भी सीखने को मिलेगा। सभी को प्रणाम। शुरू किया। नमस्कार, मेरा नाम इसिस कौंदर है। मेरी उम्र 28 वर्ष है। मैं डेवलपमेंटल कम्युनिकेटर हूँ। मैं कभी भारत नहीं गई पर भारत के बारे में जाने का मौका मुझे एक दोस्त से मिला जिसे बॉलीवुड मूवी देखने का बहुत शौक है।
साल 2009 से अब तक हमने 700 भी सदा पिक्चर देखी हैं। भारत की संस्कृति के बारे में और जानने के लिए मैं तो किताबें भी पढ़ी है। पहली पुस्तक सदीर ककार ने लिखी है जो कि मनोविषय चाहिए तथा उनकी पत्नी कैथरीन ककार मनोविज्ञानी है। पुस्तक का नाम है इंडिया रिट्राटो de una sociedad। दूसरी पुस्तक का विषय है el महाभारत जो कि एक महाकाव्य है जिसके लेखक आर.के. नारायण है। 3 साल पहले मैंने अपने आप से पूछा भारत के बारे में और जाना के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो विचार आया कि हिंदी सीखो। सालों बाद सेंटर कल्चरल इंडिया के खुलने से आज मैं हिंदी सीख पा रही हूँ। हिंदी सीखना मेरे लिए एक सुखद चुनौती है, मगर हिंदी जाने बिना भारतीय संस्कृति को जानना और महसूस करना मुश्किल होगा। धन्यवाद। मैं आपके सामने अपना हिंदी सीखने का अनुभव बताना चाहती हूँ। जब मैं 12 साल की बच्ची थी तब से मेरी माँ हर दिन हिंदी मूवी देखती थी और दोपहर में हिंदी गाने सुनती थी। उसके बाद मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे हिंदी मूवी दिखाई जो कि बहुत रोमांटिक थी। यह हिंदी मूवी ईद कभी खुशी कभी गम के ऊपर थी। मुझे कल्चर और ट्रेडिशन बहुत अच्छा लगा। तब से मुझे हिंदी से प्यार सा हो गया और हिंदी सीखने का मन किया। एक दिन मेरी दोस्त इरिस ने मुझे बताया हिंदी कोर्स के बारे में बताया कि भारतीय राजदूतावास में हिंदी सीखने का एक सुनहरा मौका और है। मैं दाखिला लिया। एक तरह मैं बहुत कुछ हिंदी क्लास हिंदी जानने और भारतीय संस्कृति से प्यार हो गया। मैं यहाँ हिंदी सीखने बहुत कुछ हूँ। मैं यहाँ दोस्तों के साथ हिंदी पढ़ती हूँ इस परिवार की तरह। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम जस्मीन ओरियाना है। जहाँ पहले बार मैं सार्वजनिक रूप से मैं हिंदी बात कर रही हूँ। मैं अध्यापिका हूँ और स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं कोई शाहरुख खान की फैन नहीं हूँ, न ही बॉलीवुड दुनिया की, लेकिन मैं फैन हूँ भारत की परंपरा, ज्ञान और संगीत की। मेरे हिंदी पढ़ने के 2 कारण हैं। पहला कारण, मुझे इंडिया में एक बहुत ही खूबसूरत अच्छे परिवार से मिलना है जिन्हें मैं कई सालों से जानती हूँ। मुझे उन्हें गले लगाना है और मिलना है। दूसरा कारण, मैं वहाँ एक स्वयंसेवक के तौर पर काम करना चाहती हूँ। मुझे भारत के साथ एक अलग से रिश्ता महसूस होता है। मैं समझा नहीं सकती हूँ भारत में मेरे दिमाग और मेरा दिल में रखते हैं। मैं अपने प्यारे खानदानी परिवार को इसके लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मैं बहुत कुछ हूँ कि जहाँ मुझे बोलने का मौका मिला। धन्यवाद। आपके अनुभव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। अंत में मैं आपके सामने मृणालिनी घुले जी की लिखी हुई कविता ये हिंदी प्रस्तुत करना चाहूँगी। ये हिंदी।
संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। जैसा कि प्रमिला जी ने कहा, पाथेय है, प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिंदी। पढ़ने व लिखने में सहज है, ये सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी, कबीर, मीरा ने इसमें ही लिखा है, कवि सूर के सागर की गागर है ये हिंदी। वागेश्वरी का माथे पर वरदस्त है, निश्चय ही वंदनीय माँ पिता है ये हिंदी। अंग्रेज़ी से भी इसका कोई बैर नहीं है, उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूँ तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। धन्यवाद। कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं दूतावास की ओर से आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ आए और इस कार्यक्रम में भाग लिया। आइए अब कुछ जलपान करते हैं।